پیارے دوستوں، ایک بار ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا علی، میرے بال سفید ہو رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی بار حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربے کی اور اشارہ کرتا ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا اسے نفس اور خواہشوں سے دور کرتا ہے، اور یہ بات کلیئر کرتی ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی کا تجربہ ہے جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور پیارے دوستوں، بوڑھوں کے مشورے کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ بوڑھوں کے پاس تجربہ ہوتا ہے اور ان کا مشورہ اچھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے مشورے کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سفید بالوں کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، یا بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو مت اکھاڑو، کیونکہ یہ قیامت کے دن نور ہوں گے۔ جو شخص اسلام کی حالت میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ اونچا کر دیتا ہے۔ اسی طرح کی حدیثیں دوسری کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ پیارے دوستوں، بالوں کا رنگنا خضاب کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپے کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل ڈالو، اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی طرح مت بنو۔ اسی طرح ایک اور دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی خضاب نہیں لگاتے، اس لیے تم ان کے خلاف کرو، یعنی خضاب لگاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کچھ چیزیں ملا کر سفید بالوں کو رنگنا جائز ہے۔ زرد خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی داڑھی کو رنگنے کے لیے زعفران کا استعمال کیا۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے حساب سے رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی تو لگائی جا سکتی ہے، لیکن آج کل الگ الگ قسم کے پروڈکٹس آ چکے ہیں جس میں کیمیکلز جو ہوتے ہیں ان سے رنگ لگایا جاتا ہے، جو آپ کی جلد یعنی توچا پر بھی لگ جاتے ہیں، اور اگر اسے جلدی سے نہ ہٹایا جائے تو آپ کی توچا بھی کالی دکھائی دینے لگتی ہے۔ اسی طرح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کبھی سرخ یعنی لال اور زرد یعنی پیلا خضاب لگایا ہے۔ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو رنگنے کا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سفید بالوں میں سیاہ یعنی کالا خضاب لگانا جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں بھی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی جو کبوتر کی پیپڑی کی طرح کالے رنگ سے رنگے گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ اس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوسرے مہندی وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔
सैयदना इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा की मनाही की है और बताया कि बालों को इस तरह से नहीं मुड़वाना चाहिए। क़ज़ा की 4 किस्में होती है। सबसे पहला ये कि सिर के बाल सारे नहीं मुड़वाना, बल्कि जगह जगह से फटे हुए बादलों की तरह टुकड़ों में मुड़वाना। जबकि दूसरी ये है कि सिर के बीच से बाल मुड़वाना और बाकी बाल छोड़ देना। तीसरी ये है कि सिर के चारों ओर से बाल मुड़वाना और बीच में बाल को छोड़ देना। चौथी ये है कि आगे से बाल मुड़वाना और पीछे से छोड़ देना। आजकल जो हम कई तरह के फैशन और स्टाइल्स देखते हैं जो पश्चिमी से हमारे बीच आए हैं, उनसे मना किया गया है। अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अदल और इंसाफ कायम करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सोहबत और शफकत की ज़रूरत है। इंसानी ज़िंदगी में भी अदल का ख्याल रखना चाहिए कि सिर के कुछ हिस्से को मुड़वा कर और कुछ हिस्से को छोड़कर सिर के साथ बेइंसाफी ना की जाए। बालों के कुछ हिस्से को नंगा कर देना और कुछ हिस्से को ढकना जुल्म की एक किस्म है। इसी तरह सैयदना इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा जिसका सिर का कुछ हिस्सा मुड़ा हुआ था और कुछ छोड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा करने से रोका और फरमाया, या तो सिर का सारा हिस्सा मुड़वा लो या सारा सिर छोड़ दो। इस हुक्म में जवान और बूढ़े सभी लोग शामिल हैं। सिर्फ बच्चों के लिए कोई खास दलील नहीं मिलती। साइंस के द्वारा भी अलग अलग तरह की रिसर्च की गई है और इनके मुताबिक सिर के बालों के सफ़ेद होने के 6 कारण हैं। पहला कारण है विरासत, यानी ये गुण आपके बाप दादा से चलता हुआ आता है, जैसे गंजापन या सफ़ेद बाल। नंबर 2, ऑटो इम्यून बीमारियां, जिनकी वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। नंबर 3, आलूदा माहौल, यानी कि गंदगी की वजह से भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। नंबर 4, मानसिक तनाव, यानी जब इंसान ज़्यादा सोचता है या डिप्रेशन का शिकार होता है तो इसके कारण भी सिर के बाल सफ़ेद हो सकते हैं। नंबर 5, सिगरेट का धुआं। अगर आप सिगरेट के धुएं के संपर्क में रहते हैं, यानी आपके इर्द गिर्द सिगरेट का धुआं होता है, तो इससे भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। और खुद भी सिगरेट पीते रहने की वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। छठी वजह यही है कि उम्र की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के बाल सफ़ेद हों उसे अपने सफ़ेद बाल नहीं उखाड़ने चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल उसके लिए नूर बनकर सामने आएंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंसान जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ अपने कदम बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे इंसान के बाल सफ़ेद होते जाते हैं। तो अल्लाह उसके हर एक सफ़ेद बाल के बदले एक नेकी अता करता है और उसके एक गुनाहों को माफ़ करता है। दोस्तों, यूं तो बाल कुदरत का एक हसीन और नायाब तोहफा है, लेकिन जब ये बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए और ख़ास करके जब जवानी में बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए तो फिर कुछ लोगों के लिए परेशानी बन जाती है। अब आप सोचेंगे कि बुढ़ापे में तो बाल सफ़ेद होना समझ में आ गया, मगर जवानी में बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और इनको हम कैसे रोक सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों, जवानी में बाल सफ़ेद होने की आजकल सबसे बड़ी वजह यह है कि मोबाइल और कंप्यूटर, जिसको हम हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता जाता है और हमारे बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह हमारा खाना पीना भी है। यूरोप में एक हालिया रिसर्च में सामने आया है जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि ज़्यादा नमक और ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से इंसान के वक्त से पहले ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसके अलावा ये मसला कुदरती भी है, यानी कि अगर किसी के वालिद के जवानी में बाल सफ़ेद हो गए तो फिर उसकी औलाद की भी जवानी में बाल सफ़ेद होंगे, क्योंकि उसके डीएनए में ये खासियत शामिल हो जाती है। अब दोस्तों, कुछ लोग इन सफ़ेद बालों की वजह से बहुत परेशान रहने लगते हैं। वो उखाड़ने लगते हैं
और उनको रंग लगाते हैं। आइए आपको इसके बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, कुछ लोग अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ते हैं, तो याद रखें सफ़ेद बालों को निकालना मकरूह है, यानी कि मना है, चाहे वो सर का बाल हो या फिर दाढ़ी का बाल हो। ऐसा करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर आपको सफ़ेद बालों को बदलना ही है तो उसमें आप मेहंदी वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में सफ़ेद बालों को रंगना गलत नहीं है। एक आदमी ने 500 साल तक समुंदर में एक पहाड़ पर रहकर अल्लाह की इबादत की। ये पहाड़ करीब 30 मील लंबा है और समंदर में कई सौ मील तक फैला हुआ है। अल्लाह ने उस आदमी के लिए इस पहाड़ पर मीठे पानी का एक झरना बनाया, जिसकी धार हाथ की उंगली के बराबर है। इस पहाड़ के पास एक अनार को उगाया, जिस पर हर दिन एक अनार लग जाता था। वो आदमी पहाड़ से नीचे आकर वो अनार से पेट भरता, फिर वजू करता और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता था। जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ की, आए अल्लाह, मेरी मौत सजदे की हालत में आए और मेरे जिस्म को पाक और साफ जगह पर महफूज कर दिया जाए, और जब क़यामत के दिन मुझे दोबारा जिंदा किया जाए तो सजदे की हालत में जिंदा किया जाए। अल्लाह ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। जब भी हम आसमानों पर जाते और जमीन पर उतरते हुए उसे सजदे की हालत में ही देखते हैं। क़यामत के दिन जब उस शख्स को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, आए मेरे बंदे, मेरी रहमत से जन्नत में चलो। तो उस शख्स का सवाल होगा, आए अल्लाह, मेरे नामाए आमाल की वजह से मुझे जन्नत में क्यों नहीं भेजा जा रहा है। यह किस्सा 2 बार होगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, जा बंदे, मेरी रहमत से जन्नत में चले जाओ। फिर वो शख्स कहेगा, आए अल्लाह, मेरे आमाल की वजह से मुझे जन्नत क्यों नहीं अता की जा रही। तो अल्लाह ताला उससे फरमाएंगे कि तुझे जो नेमतें मैंने अता की है उनका और तेरे आमाल का दोनों का हिसाब किताब होगा। सिर्फ आंख की नेमत से ही उसके 500 साल के नेक आमाल खत्म हो जाएंगे और बाकी सभी जिस्म पर किए गए एहसान ज्यादा होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इस बंदे को जहन्नुम में डाल दो। जब उसे जहन्नुम में ले जाने के लिए पकड़ा जाएगा तो वो कहेगा, ऐ अल्लाह, मुझे अपनी रहमत के जरिए जन्नत में भेज दो। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरे इस बंदे को इधर लाओ। जब उसे लाया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुझे पैदा करने वाला कौन है। वो जवाब देगा, ऐ अल्लाह, आप ही मुझे दुनिया में जिंदगी देने वाले हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुझे 500 साल तक जिंदा रख कर इबादत की तौफीक देने वाला कौन है। वो जवाब देगा, ऐ अल्लाह, आपने ही मुझे जिंदा रखा और इबादत की हिम्मत दी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुझे समंदर में पहाड़ के ऊपर किसने पहुंचाया और वहां पानी और अनार देने वाला कौन था। वो बंदा जवाब देगा, ऐ अल्लाह, आपने ही मुझे सब कुछ अता किया है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, तेरे कहने पर ही मैंने तेरी जान सजदे की हालत में निकाली और सजदे की हालत में दोबारा डाली। ये सब मेरी रहमत की वजह से ही हुआ है। मैं अब भी तुझे अपनी रहमत की वजह से ही जन्नत में दाखिल कर रहा हूँ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, जो कुछ भी आसमान में है वो अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत के साए में रखे और अपनी रहमत से जन्नत अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।